Today we are starting our new chapter, that is coordinate geometry. Now, coordinate geometry, it is one of the important branch of mathematics which is developed by French mathematician, as well as he is also the he was also the philosopher named René Descartes. René Descartes is such a mathematician who has developed the theory of coordinate geometry. It is also the one of the important branch of geometry. So, what the importance of this branch of mathematics? So, let me introduce that. So, as we know that how to locate the point on the line. Suppose if I consider this is the number line 0, positive, 1, 2, 3. Towards left, negative values are there. So on number line, how to represent any of the number, that already we have learned. Suppose 3, simply here it is from 0 towards right 3 unit, it is positive 3. If I say 3 upon 2, that is 1.5, so it is lies in between 1 and 2, so that is here between 1 and 2. This is the way by which we are representing the number on the number line. But when we talk about the two dimension means where it is having such a part or the plane figure which has length as well as breadth. So this is what we called as two dimension. So in two dimension, how do we locate any of the point? So to locate the point in the two dimensional, René Descartes has used two number lines, one horizontal and another is vertical. Horizontal and vertical both are considered to be the number lines. And this zero, we called it as origin. उसे origin का. And with respect to this axis, he just tried to locate the points in the plane. So this is what the theory which was developed by René Descartes. So basically, what is the coordinate geometry? So we say it is only the system used for describing any of the position of the point in the plane. We called it as Cartesian system also. We called it as Cartesian system, which is also known as coordinate geometry. So Cartesian system means it is simply the way to represent any of the location of the point in the coordinate plane, means in two-dimensional figure. For example, every now and then we are using this system, but we do not know exactly we are using that only. अगर आपको किसी ने आपके घर का पता पूछा है तो हम कहते हैं कि हाँ यहाँ से आप फिर आगे स्ट्रेट जाओ, फिर राइट में इतना मुड़ो, लेफ्ट में इतना मुड़ो. ओके, सो ये लेफ्ट एंड राइट इट इज, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सिंपली द डायरेक्शंस वी आर यूजिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहूँ कि अगर मुझे किसी ने पूछा सर ये रियल एकेडमी कहाँ आया, तो मैं क्या कहूंगा? टवर्ड्स ये main road of the Vishwamitri. Suppose if you start with the beginning of the road, if you move 500 meters, 1, 2, 3, 4 and 5. So ये 500 meters, सारे meters में ले रहा हूँ ये 100 meters, 200. So you can move 500 meters on the main road. From main road, you will have to move left. If you move left only 100 meters, then again you can move 200 meter towards right. This is 200 meter. It is parallel to the track. And then again, if you move left to the 100 meter, here you will have real academy. That means here left and right means vertical, horizontal. This is the what the direction we are using. This is what the coordinate system. इसी को हम coordinate system कहते हैं. So basically it is used to locate the point in two-dimensional plane. So ये two-dimensional plane, इसी को हम कहते हैं coordinate plane. Suppose now the whole board I consider as a my plane.
बट जनरली फॉर यू पीपल, कोऑर्डिनेट प्लेन, जो प्लेन की जिसमें हम पॉइंट लोकेट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब अगर आपने देखा होगा आपका ग्राफ पेपर, सो ग्राफ पेपर, उसमें दो टाइप के ग्राफ होते हैं। 5x5 का भी होता है जो हमने जनरली प्राइमरी में यूज किया है, और नाइन्थ ऑनवर्ड 9th 10th में हम लोग यूज करेंगे 10x10, मतलब 1x1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 10 स्क्वायर्स होते हैं। तो वही ग्राफ पेपर यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ सपोज इफ यू लुक एट द ग्राफ पेपर, यू कैन फाइंड many of the horizontal lines as well as vertical lines. But these horizontal and vertical lines are such which are perpendicular to each other. सारी horizontal और vertical line perpendicular होती है. So any one of the line you can consider as x-axis and it is denoted by x dash. This is simply the number line. So यहाँ हम 0, here it is 1 2 3 4 5. टवर्ड्स राइट हमें पता है कि नंबर लाइन पर पॉजिटिव होते हैं, जीरो टू लेफ्ट में देखोगे सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं। सिमिलरली ये वर्टिकल को हम कहते हैं वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। तो इसका भी नंबर लाइन पे दिस पॉइंट इज कंसिडर एज 0, अपर में अबाउ 0 इट इज पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, and towards downward negative values are there. So equal distance पर 1 सेंटीमीटर पर ये हमारे पॉइंट मैंने लोकेट कर दिए। सो ये पूरा जो पेपर था ग्राफ पेपर, वी कॉल्ड इट एज कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके अंदर एनी ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन कंसीडर एज एक्स एक्सिस एंड एनी ऑफ द वर्टिकल लाइन यू कैन कंसीडर एज वाई एक्सिस। तो ये जो एक्सिस होते हैं इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से है? एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। अब इसी में ये भी समझ लो कि कहीं पे भी एक्स एंड एक्स डैश लिखना नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव साइड इंडिकेट एक्स एंड वाई, ये राइट में और ये वर्टिकल। So OX and OY it indicate positive X and Y axis, whereas OH dash and OY dash that indicate negative axis. तो पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखो, कोई भी ऊपर है गलती से डैश नहीं कर देगा। So dash means it indicate the negative direction. Now both the coordinate axes intersect at a point 0. This point 0 we called it as origin. इसे ही ओरिजिन करना है। अब ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसी में हमें लोकेशन कोई भी पॉइंट बताने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही चाहिए। सिंपली जैसे मैंने वो एड्रेस कहा कि हमने अगर पूछा कि सपोज यहां पर ही कि ये पॉइंट एक मैंने रखा, सो ये पॉइंट का हम लोकेशन बताना है तो क्या कहेंगे? सो ऑलवेज ये ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, इसी से रेफरेंस लेके इसी से रिलेटेड हम लोग उसको कहेंगे। सो सिंपली वी विल मूव 3 यूनिट टवर्ड्स राइट, 0 से 3 यूनिट राइट में गए, एंड देन यू कैन मूव 2 यूनिट टवर्ड्स लेफ्ट। सो ये 3 यूनिट 0 से बढ़ेंगे, यहां से 2 यूनिट, तो ये आपको मिल जाएगा लोकेशन ऑफ द पॉइंट। मतलब हमें यहां कोई भी पॉइंट का लोकेशन के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक्स की और वाई की। बट ये ऐसा पॉइंट है कि वहां पर एक्स और वाई दोनों ही 0 0 है, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है इसे हम जनरली स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड अगेन दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। पहली वैल्यू ऑलवेज एक्स की लिखनी है, सेकंड वैल्यू ऑलवेज वाई की लिखनी है। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, coordinates of the point. Coordinates means x coordinate and y coordinate. Combined we call it as coordinates of the point.
तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? सो दे आर 0 0। अब यहाँ पे 2 0 लिखने, इट इज कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहां हमारा एक ही बार 0 लिखा है, बट दिस 0 एक्स का भी 0 है, वाई का भी 0 है, कंसिडर एज कोऑर्डिनेट 0 0। वन लाइन में ब्लैंक में आपको पूछा जाता है विथ व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, याद रखो। नाउ एक्स एंड वाई वी कॉल्ड इट एज कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें x, जो x कोऑर्डिनेट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा। x coordinate we called as abscissa and y coordinate we called as ordinate. So y को हम कहेंगे ordinate, x को कहना है एब्सिसा, y वैल्यू को कहना है ordinate, एंड कंबाइनली एक्स वाई अगर ये लिखेंगे इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। पेयर है एक्स और वाई की, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर में एक्स को एब्सिसा कहना है, वाई कोऑर्डिनेट कहना है, कंबाइनली एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब याद रखो, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो सपोज अगर मैं कहता हूं कि ये आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, आपका कोऑर्डिनेट प्लेन में यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली एक्स एक्स डैश, दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन ले, दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो गया। नाउ as I drawn x axis and y axis, then the whole plane it is divided into 4 parts। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखो 1 2 3 4, each part of this plane we called as quadrant। याद रखो इसके कहना है quadrant, हर एक पार्ट को। सो द होल कोऑर्डिनेट प्लेन इट डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। उसका भी नंबरिंग याद रखो, ये अपर राइट है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट 1, देन एंटी क्लॉकवाइज जाना है, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस वन क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। So याद रखो, each part of the coordinate plane formed by coordinate axis we called as quadrant। अब हर एक क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट, कब कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा? सो जस्ट सिंपली लुक एट, दिस इज द पोर्शन जिसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ लुकिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, so it is OX and OY, the interior part of OX and OY we called as first quadrant। देखो इंटीरियर पार्ट, ये एंगल समझ लो इसे, तो एंगल का ये इंटीरियर पार्ट हुआ। तो यहां पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, मींस इन अ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स का मतलब मैं कह रहा हूं नाउ x और y की वैल्यू। अब जो उसकी टर्मिनोलॉजी में धीरे धीरे यूज करो आपको उसको समझना है। इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स, सो उसके कोऑर्डिनेट्स ये x और y, इफ बोथ आर पॉजिटिव देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट देखो सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल x डैश ओ वाई। देखो इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस एंगल, ये हमारा एंगल कौन सा था? एक्स ओ वाई। Interior part of XOY, that is first quadrant, interior part of X dash OY, that is second quadrant। अब ये X dash आया मतलब यहां पर X की वैल्यू नेगेटिव है, so that means फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव X की एंड सेकंड वैल्यू पॉजिटिव Y की। सारी X की वैल्यू नेगेटिव कोई भी होगी, Y की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव हो, so the interior part of angle X dash OY, that is second quadrant, मतलब कोई भी, so that point always lies in second quadrant। Now what about the third quadrant? This is third quadrant, it is the interior part of the angle x dash o y dash, this is what we call third quadrant। दोनों डैश वाले आए मतलब क्या? o x dash o y dash both are negative,
So obviously x and y both the negative value are there, then that point always lies in the third quadrant. x की भी वैल्यू नेगेटिव, y की भी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा. देन व्हाट अबाउट द फोर्थ quadrant? It is the interior part of the angle x o y dash. x o y dash. तो यहां पर देखोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू सारी निगेटिव है. x positive, y negative, then the point always lies in fourth quadrant. तो हमें अगेन ये रिकॉल करवा दो कि सारा हमारा था ये कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस x x डैश, वर्टिकल लाइन y y डैश दैट इज कॉल्ड y एक्सिस. दो एक्सिस ड्रॉ करें, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन हुआ, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस द होल प्लेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ईच पार्ट वी कॉल्ड एज क्वाड्रेंट. एंटी साइक्लिक वे से हमें उसको याद रखना है. दिस इज फर्स्ट वन, देन सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट आते हैं? इफ बोथ द वैल्यूज x and y are positive, then point lies in first quadrant. But if x is negative, y is positive, then the point lies in second quadrant. If both x and y are negative, then the point lies in third quadrant. As well as if x is positive, y is negative, then point lies in fourth quadrant. तो एक्सिस पर पॉइंट कैसे आएगा और कब आएगा? सो सपोज यहां पर मैं देता हूं एक पॉइंट दे दिया, तो एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ द फॉर्म x0, मतलब x की वैल्यू दी है बट y0 है, देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस. x की वैल्यू है बट y की नहीं है, तो उसे कहेंगे लाइज ऑन x एक्सिस. एंड एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ द फॉर्म OY, मतलब क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ भी होगी, whether it is positive negative that is not the matter, but y की वैल्यू होनी चाहिए. then always point lies on y axis. so point y axis पर ही होगा. तो ये उसका फॉर्म याद रखो कि कौन से फॉर्म का पॉइंट कहां पर एक्सिस पर कब आता है. सो पॉइंट एक्सिस पर आने के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है आइदर x और y शुड बी 0. कोई भी एक 0 होना चाहिए. If x is 0 and y is any of the values given, then obviously point lies on y axis. जो 0 होगा, जिसकी वैल्यू 0 होगी, उस पर कभी भी पॉइंट नहीं आएगा. x एक्सिस पर पॉइंट कब होगा? सो x की वैल्यू दी होगी तो y0 मीन्स y एक्सिस पर पॉइंट ही नहीं है, तो इट लाइज ऑन x एक्सिस मीन्स x की वैल्यू होगी y0. अगर x 0 है और y की वैल्यू दी है तो पॉइंट ऑब्वियसली इट लाइज ऑन y एक्सिस. कैसे? तो उसका मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दूं कि पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करना है. तो पॉइंट प्लॉटिंग के लिए यहां मैं थोड़े से पॉइंट ले रहा हूं. सो हाउ टू लोकेट डिफरेंट पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. सो अलग अलग टाइप के मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं. सपोज इफ आई कंसिडर 2 3, देन -2 3 or -3 -4, or you can say here 1 -2, or here 3 0, or we can say it is 0 -4. चलो यहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स के ऐसे पॉइंट्स ले. सो हाउ टू लोकेट द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. तो ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब ग्राफ पेपर मेरा तैयार है. सो ग्राफ पेपर में ये क्वाड्रेंट अभी भी यहां पर रखे हुए हैं. समझो पहला x and y both are positive, obviously the point lies in first quadrant. लोकेट करने के लिए देखो क्या करना है. सबसे पहले बता दो कि ग्राफ पेपर में सारा काम पेंसिल से ही करोगे. पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए क्योंकि वहां लाइंस बहुत शार्प होती है. सो वहां हमारी जो ड्रॉ की हुई लाइन है उसी के ऊपर हमारी पेंसिल चलनी चाहिए. तो पेंसिल एकदम शार्प रखो
और शार्प पेंसिल लेके ही लाइन टू लाइन आपको भी शार्प लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि डबल लाइन जरा भी दिखनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। ग्राफ पेपर पर कुछ भी पेन से नहीं लिखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल आपको अगर सपोज ये .23 लोकेट करना है, सपोज लेट मी से इट इज पॉइंट ए, तो इसको लोकेट कैसे करेंगे? सो टू लोकेट एनी ऑफ द पॉइंट ऑलवेज बी जस्ट होल्ड द पेंसिल ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस की वैल्यू सबसे पहले पकड़ो, उस पर पेंसिल लेके उसको होल्ड करो। तो एक्स इज इक्वल टू 2 हियर, तो लेट मी होल्ड पेंसिल ओवर 2। यहां एक्स एक्सिस के 2 पर पहुंच गए। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ y। इफ y is positive then obviously you have to move towards अपसाइड मींस अपवर्ड। अगर ऊपर मुड़ना है मतलब क्या, तो अपर में क्या y पॉजिटिव है और निगेटिव कहां है, डाउनवर्ड है। तो एक्स एक्सिस के वहां पहुंचने के बाद आपको तय करना है वेदर यू हैव टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ y is positive then we will move upward and if y is negative we will move down। वैल्यू पर होल्ड कर देंगे। यहां से अगेन सोचेंगे कि वेदर वी हैव टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे। So x is equal to 2. So this is the point. Just let me hold the pencil. Then y is positive 3. So simply from this 2, I will move in upward direction. So upward direction ये आपके यहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है, ये सिर्फ मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। So यहाँ मुझे दिखाना है, यहाँ 2 से मैं 3 यूनिट ऊपर जा रहा हूं। So 3 यूनिट ऊपर मीन्स क्या? So this is the upward direction। मीन्स अलोंग द y एक्सिस मुझे 3 यूनिट जाना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग y एक्सिस 3 यूनिट गया एंड अलोंग x एक्सिस ये 2 यूनिट है। तो इसका मतलब ये भी समझो, ये x की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू 2 क्या बताती है? सो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू मतलब बताती है इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस से ये पॉइंट सपोज लेट में से हियर 2 एंड 3, तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया 2 3। सो दिस इज व्हाट द लोकेशन। ये पॉइंट ए का लोकेशन हुआ 2 डायमेंशन में 2 3 कहां है? सो एक्स एक्सिस का 2, बट एक्स की वैल्यू 2 क्या बता रहा है? तो ये पॉइंट y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये 2 यूनिट मैंने लिखा हुआ है। और ये y का डिस्टेंस क्या बताता है? तो y का डिस्टेंस ये पॉइंट बताता है कि y ये पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 3 है। तो यहां ये भी आपको याद रखना है कि x क्या डिनोट करता है? x सिंपली डिनोट द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड ये y की वैल्यू दिखाता है इट इज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस। सो x दिखाता है y एक्सिस का से डिस्टेंस और y बताता है x एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर ऐसे मतलब स्ट्रेट आपको देखना है। तो ये आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा और करोगे तो भी, मतलब ये हमें कैसे देखना है वो हमें दिखाया यहाँ पर। यहाँ x एक्सिस की वैल्यू 2 है, यहां से वर्टिकली आपको देखना है परपेंडिकुलरली पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 2 3। बट मान लो यहीं पर ये वैल्यू अगर आपको 3 2 दिया होता, 2 3 था इन 3 2, तो 3 2 कहां पर आएगा? नाउ x की वैल्यू 3 3 2 मींस x इज 3 एंड y की वैल्यू 2, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ऊपर जाऊंगा 2 यूनिट, तो यहां से 2 यूनिट ऊपर गए। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू, इट इज 3 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहां हमने अगर ये 2 3 दिया और 3 2 बोथ आर डिफरेंट, तो कभी ये हमने लिखा कि चलो x और y और दूसरे ब्रैकेट में लिया y एंड x। आपको पूछा जाएगा वेदर x y एंड y, उसमें क्या ऑर्डर तो आगे पीछे किया है, x को आगे y को पीछे लिखा, बट लिखा तो वही है। तो क्या ये दोनों सेम हो गए? पता चल रहा है यहाँ पे 2 3 एंड 3 2 दे आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, दे आर डिफरेंट पॉइंट, दोनों की पोजीशन अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई एंड वाई एक्स दे आर नॉट इक्वल, वो सेम नहीं है। क्यों? कोऑर्डिनेट प्लेन में उन दोनों के लिए जगह अलग अलग है, उनकी पोजीशन अलग अलग है।
तो ये पॉइंट मुझे बताना था, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स. नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट, -2 3. सो एक्स की वैल्यू -2, दिस इज व्हाट द -2. नाउ y इज अगेन 3. तो -2 से परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे ऊपर बढ़ना है. कहा कितना यूनिट बढ़ना है? ये 3 यूनिट तक. तो ये आएगा. तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे? जहां एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल रहा है वहां पर आप डॉट करोगे और डॉट करके उसको छोटा सा इंसर्कल कर दो. डॉट करके छोटा सा इंसर्कल कर दो तो हमें उसका ये पोजीशन पता चल जाएगा. सो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -2 एंड 3. ऑलवेज एक्स की वैल्यू पहले ही देखनी है. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ -2 3. अगर थर्ड पॉइंट लिया -3 -4, एक्स की वैल्यू -3. अगेन ऑलवेज क्या कहा, लेकिन समझ लो पॉइंट प्लॉटिंग के लिए ऑलवेज आपको एक्स की जो भी वैल्यू, एक्स मतलब एब्सिसा, याद रखो एक्स मींस एब्सिसा, वाई मतलब ऑर्डिनेट कहते हैं. तो एब्सिसा पर वैल्यू मैंने एक्स की वैल्यू -3, वहां पर पेंसिल होल्ड करनी है. वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड मुझे मूव करना है नीचे की ओर. कितना? 4 यूनिट. तो 4 यूनिट तक मैं नीचे डाउनवर्ड आऊंगा. तो ये 4 यूनिट है. यहां पर देखो ये सीधा जा रहा है तो ये -3 और ये -4 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज व्हाट द पॉइंट -3 -4. फोर्थ पॉइंट 1 -2. एक्स की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव है. y इज -2 नेगेटिव मतलब यहां से भी मुझे नीचे आना है. कितना नीचे आना है? 2 यूनिट. तो ये 2 यूनिट नीचे आ गया है. -2 मतलब सो -2 तक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज व्हाट 1 -2. ये हमारा पॉइंट हो गया. पॉइंट प्लॉटिंग जैसे कैसे कहा है, एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी वहां पर हम पेंसिल होल्ड करेंगे. वहां से y पॉजिटिव हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, y नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है. बट व्हाट अबाउट द पॉइंट 3 0? y कोऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट 0 है. y y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट 0 है. बट उसी को हम दूसरे फॉर्म में कहेंगे ऑर्डिनेट इज गिवन 0. मतलब क्या? y की वैल्यू ऑर्डिनेट इज 0. सो x की वैल्यू 3, x इज 3. अब हमने क्या कहा? x की वैल्यू उस पर हमने पेंसिल होल्ड कर दी. इफ y इज पॉजिटिव देन वी विल मूव अपवर्ड, y इज नेगेटिव वी विल मूव डाउनवर्ड. बट यहां पर तो 0 है, नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव. सो नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव तो कहा? नहीं ऊपर जाना नहीं नीचे जाना. तो कहां जाना? वहीं पर रुकना है. 0 मीन्स from that position we do not have to move anywhere. So this is what exit 3. This is the position of the point. यहां पर x की वैल्यू 3 है, y 0 है. मीन्स एब्सिसा इज 3. एब्सिसा इज गिवन but ordinate is 0. Then always point lies on x-axis. Second point 0 -4. X is 0. X is 0. Just hold the pencil at 0. Then y is given -4. -4 that means we have to move in downward direction on axis. 0 ये एक्सिस पर ही है तो एक्सिस पर ही नेगेटिव वैल्यू में मुझे डाउनवर्ड में नीचे जाना है. कितना जाना है? -4 मीन्स आई विल हैव टू मूव डाउनवर्ड 4 यूनिट्स. तो 4 यूनिट में नीचे आ गया. तो ये 4 पर होगा पॉइंट, वहां पर डॉट कर देंगे एंड जस्ट वी विल पुट एनसर्कल. ये हमारा हो गया पोजीशन x0 y -4 means abscissa is 0, then point lies on y axis. सिंपल फॉर्म में उसको याद रखो, कोई भी एक 0 होगा तो पॉइंट एक्सिस पर ही आता है. बट अगर उसमें जो 0 होता है उस पर वो पॉइंट नहीं आता, x 0 है तो x पर नहीं आएगा. मीन्स पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. y 0 है तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पर. वेरी क्लियर. सो पॉइंट प्लॉटिंग कैसे करना है ये इसमें से सीखना है हमें. ये पूरे चैप्टर में, अभी थर्ड चैप्टर में इसी के डिपेंड यही दिया हुआ है कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहना है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, क्वाड्रेंट किसको कहना है, ओरिजिन क्या है, पॉइंट का प्लॉटिंग हम कैसे करते हैं, यही ये चैप्टर में दिया हुआ है. तो इसी से उल्टा लेट मी रिमूव ऑल दिस पॉइंट्स.
क्वाड्रेंट को मैंने हटा दिया है, अब उसकी जो वैल्यूज आपको कैसी वो पता चल गई है, तो उसी से लेके आगे बढ़ते। सपोज तो आपको कहेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोई एक पॉइंट, मतलब मैं डिफरेंट पॉइंट्स यहां पर ले रहा हूं और आपको उसकी पोजीशन आपको कहनी है। सपोज दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, यहां पर मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूं। सपोज दिस इज व्हाट द अनदर पॉइंट इज गिवन, लेट इट बी ए, ये बी है। यहां पर मैंने एक पॉइंट कर दिया, इट इज सी। देन यहां एक कोई पॉइंट कर दिया, मान लो दिस इज व्हाट डी। हियर इसको हटा देते हैं, put it here, 5 it is E, and let me consider one point here, this is F. Now suppose A to F, these 6 points are given in the coordinate plane. If you are asked to find out the coordinates of the point, coordinates of the point मतलब क्या, उसके x और y की वैल्यू। सिंपल लैंग्वेज में अगर उसको कहना है तो ये क्या है, उसका एड्रेस है। एड्रेस बताता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये अगर ये मैंने पॉइंट कहा 2 and 3, इसका मतलब क्या, तो 2 मतलब x की वैल्यू 2, तो y एक्सिस से 2 यूनिट जाना है x की ओर, टवर्ड्स x एक्सिस, तो y एक्सिस से 2 यूनिट जाना है, और y की वैल्यू क्या बता दी है, x एक्सिस से कितना ऊपर मुड़ना है। So x indicate the distance of a point or position of the point from y-axis, and y indicate position of the point from x-axis। ये याद रखना, ब्लैंक में 1 मार्क में पूछा जाता है। अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ए, कोई भी पॉइंट के पोजीशन या तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो, सो सिंपली कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना मतलब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो जो पॉइंट दिया है सिंपली वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट वी सिंपली ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन सिंपली इट इज द लाइन इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल स्ट्रेट। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों पे ये हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई 2, सो एक्सिस 2 हो गया, एंड y की भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y एक्सिस पर देखो ये भी 2 है, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, 2। एक्सिस भी 2 है, ऑर्डिनेट भी 2 है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट बी, अब बी से हमें फाइंड आउट करना है, सो बी की वैल्यू क्या, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, ये बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपको ये स्केल से सारा करना है परफेक्ट। तो ये x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई -2, एंड y पर परपेंडिकुलर देखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज 5 पॉजिटिव है, सो -2 5, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। सी, थर्ड पॉइंट देखो, ये सी इट इज द पॉइंट लाइंग ऑन एक्सिस, मतलब तुरंत हमें माइंड में आना चाहिए कोई एक जीरो होगा, एक्स या तो वाई। कौन जीरो होगा, सो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो ऑब्वियसली वाई जीरो ही होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सो एक्स की वैल्यू -4 है, एक्स की वैल्यू -4 है, और नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, मतलब एक्सिस पर है, सो वाई जीरो होगा। सो -4 0, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी की बात करो, सो पॉइंट डी, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, देखो ऑलवेज एक्स एक्सिस पर पहले देखना है, एंड देन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आ गई -4 है, वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई -5, सो -5 -4, these are the, sorry, -4 -5, these are the coordinates of point D। E के बारे में सोचो, E again it is given on यहाँ x एक्सिस ही है, सो ये x एक्सिस पर वैल्यू 5 है, एंड x एक्सिस है तो y 0 हो गया।
Suppose if I talk about this, consider another point here, -3 को ये लेते हैं. So this is the -3. Let me call it as G. So which are the coordinate of point G? So as it lies on y-axis, x की वैल्यू 0 होगी, या तो यहां से देखो x की वैल्यू ऊपर दिए, x पर 0 दिख रहा है, एंड y-axis की वैल्यू है यहाँ पर -3. So 0, -3, these are the coordinate of point G. What about F? So F का भी सेम, अगर यहाँ से अगेन x पर हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे एंड परपेंडिकुलर y एक्सिस को भी देख लो. सो परपेंडिकुलर y एक्सिस, सो दोनों के दोनों पॉइंट हमें मिल गए. x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -3 है. तो पोजीशन और लोकेशन, या तो आपको कहा होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स. तो सिंपली क्या करना है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, सिमिलरली परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. जो भी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलती है, दैट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वी कॉल्ड इट एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. तो पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज में हमें यही दिया हुआ है. नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 3.2. एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर दे. 3.1 सिंपली एक्टिविटी बेस्ड है, सो दैट यू कैन डू. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक हो तो साथ में रखो. एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन पूछे, what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का सपोर्ट लिया जाता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन? सो हॉरिजॉन्टल लाइंस वी कॉल्ड इट एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वी कॉल्ड इट एज वाई एक्सिस, और combinedly we call them as coordinate axis. Coordinate axis, याद रखो. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? By these drawing these two lines in the coordinate plane, the whole plane divides into 4 parts. Each part we called it as quadrant. So each part we called as quadrant. उसमें भी क्वाड्रेंट हमने कैसे कहा था, अपर राइट में होता है, दैट इज फर्स्ट वन, देन मूव एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट. ये एंटी क्लॉकवाइज उसके नाम याद रखने, नंबर याद रखने. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट, these two lines intersect. Name the point where two lines, means two coordinates, get intersect to each other. So that is, we called it as origin. Now, which are the coordinates of origin? 0, 0. Order pair में 0, 0 लिखना है, means x is 0 as well as y is also be 0. That is called as origin. So third का आंसर है that is origin. और पूछा नहीं है, but यहाँ पे लिख दो, these are the coordinates of the origin, 0, 0. Now, again the same way, in question number 2, here you are asked different questions, and for that you are given the graph. So let me draw the graph. ये ग्राफ पहले मैं ड्रॉ कर दूं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. सो ये मैं ग्राफ टेंटेटिव फटाफट ड्रॉ कर दूं. एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, दिस इज व्हाट ओरिजिन. देन लेट मी कंसीडर डिफरेंट पॉइंट्स. सो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 towards left also.
-1, -2, -3, -4, -5, -6, and toward downward. ये हमने पॉइंट्स कर दिए। नाउ यहां आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं। सो हियर ये एक पॉइंट यहां पर दिया है, दिस इज बी, देन एल, एंड देन यहां पर एम है, देन ऑल्सो here H is given, then G, यहाँ G दिया हुआ है, then E, here it is E, then C, suppose this is C, okay, then D, here it is D given. Okay, so distinct points are given. Now question number 2 says, see the figure and write the following. The coordinates of point B, देखो coordinates कहा, point B के coordinates, B के coordinates, coordinates means values of x and y. So point B देखो ये रहा, इसके coordinate find out करना means x and y की value. So simply let me draw perpendicular on x axis and perpendicular on y axis. अगर परपेंडिकुलरली देखेंगे तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई -5 एंड y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है +2. सो -5, 2, these are the coordinates of point B. सो माइनस प्लस है, ऑब्वियसली पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है. सेकंड, द ऑर्डिनेट्स ऑफ C, coordinates of point C, similarly coordinates of point C. पॉइंट सी ये रहा, यहां पर पॉइंट सी दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहां से सबसे पहले एक्स पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो 5 वैल्यू आ गई, एंड वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. सो ये वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसकी वैल्यू आ गई -4. सो ये सी की नहीं, -5 से ही, यहाँ थोड़ा पॉइंट की लोकेशन यहाँ मेरे एग्जैक्ट नहीं है तो आगे पीछे हो रहा है. सो ये -5, x की वैल्यू +5, y की वैल्यू -5, -5. सो 5 -5, these are the coordinates of point C. पर पूछा, the point identified by the coordinates -3, -5, -3, -5, which is the point identified this two coordinates by this coordinates. तो -3, -5 से कौन सा पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है? तो देखो x की वैल्यू -3, सो दिस इज -3, और -5 मतलब निगेटिव डायरेक्शन में यहां से देखोगे तो यहां से -5 मतलब 5 यूनिट्स डाउनवर्ड में, तो ये रहा -5 आ गया. सो -3 और -5 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट में E मिल रहा है, so this is our point E. Then the point identify the coordinates 2, -4, 2, -4, ये coordinates दिए. अब ये कौन सा पॉइंट है? सो x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज -4 दिया हुआ है. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4 से 2 से देखोगे नीचे और ये -4 दिखाए, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारे यहाँ पे? G है. तो ये 2, -4 वाला हमारा पॉइंट है G. तो ये हमारा पॉइंट मिल गया G. देन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, चलो पॉइंट D ये रहा, इसका एब्सिसा, एब्सिसा मींस व्हाट? इट इज एक्स कोऑर्डिनेट ओनली. तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से सिंपली हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 6, सो वी कॉल्ड इट एज, इसका एब्सिसा है, एब्सिसा इज 6. एब्सिसा मींस वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस.
देन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का है देखो, ये एच थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ वाई, और वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। सो यहां से हम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस की वैल्यू आ गई -3, तो ऑर्डिनेट होगा उसका, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -3, इसका पॉइंट एच का है। सो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच -3 हुआ, ये एब्सिसा हुआ पॉइंट डी का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी पूछा है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो एल हमारा देखो यहां पर दिया है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर एल है, इसके कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। सो अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स ऑब्वियसली 0 ही होगा, एंड वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू 5 है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 5। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट देखो यहां पर है, एम एक्स एक्सिस पर है, तो एम के कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स एक्सिस पर वैल्यू उसकी -3 है, और एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई 0 ही होगा, सो ये 0 है। सो एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 एंड 0। सो यहां हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 ये खत्म होती है। तो ऐसे ही पॉइंट प्लॉटिंग ही आपको इसी में पूछे हुए हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में भी आपको पॉइंट दिए हैं, और उसी पॉइंट का प्लॉटिंग करने को ही आपको कहा हुआ है। तो ये पॉइंट प्लॉटिंग कैसे का, ये आज हमने डिस्कस किया है। इसी के बेस पर, इसी का यूज करके हमें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में शुरू करेंगे। थोड़े आगे नहीं, इसका रिवाइज करके इसी की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर हो सके तो 3.3 जो एक्सरसाइज हमारी है उसी का डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए हमारा इतना ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हर नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, ऑलवेज।